सो हेलो देयर। आज के इस लेक्चर में वी विल सी द मोमेंटम एंड देन आफ्टर हम देखेंगे फोरस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। थर्ड सबसेक्शन में हम देखेंगे इम्पल्स। हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम देखेंगे बाय कोलिजन। और भी देखते हैं बाद में क्या होता है। So these are the main topics today that we will cover. Okay, so let's start the video by momentum. Okay, so our first topic is today momentum. Momentum is nothing. It's defined as the product. Momentum is defined as the product of the mass of the body to its velocity. So it is defined as the product of mass of body with its velocity. Okay, it is denoted by capital P. Okay, capital P is an इसको denote करेंगे. So what's then momentum? Mathematically momentum is mass into velocity, or P equal to m into v. Okay, यूनिट्स भी देखते हैं इसके क्या यूनिट्स हो गए इसके यूनिट्स SI यूनिट जो है इसका इट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड. किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इट्स यूनिट. कहाँ से आ गए किलोग्राम m से मीटर पर सेकंड फ्रॉम v. ग्रेट. सो वी हैव नोट. एक पॉइंट करना है आपको नोट. इफ द बॉडी is at rest, then its momentum is infinity. Then it is momentum is infinity. Okay, इसका momentum infinity होता है. Okay, so zero होता है क्यों? Because its velocity is zero. mass can never be zero. So we are done with momentum. Now we'll see the force in terms of momentum. So wait. Okay, I hope it's clear to you. या क्वेश्चन एक भी करते हैं. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एक करते हैं यहाँ पे. if a sphere of mass 5 kg moves with velocity say 20 meter per second, then calculate its momentum. So let's calculate it. Solution. क्या दिया गया है मेरा mass
हाउ मच इज दिस 5 किलोग्राम है एंड वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर्स पर सेकेंड therefore my momentum p equal to m into v. So substitute the value 5 into 20. Momentum is 100 kilogram meter per second. It's the answer. ठीक है. For this sphere, it is the momentum. Great. See, momentum. There is one more thing that you should need to remember. जो मैं यहाँ पे भूल गया. Momentum is a vector quantity. Momentum is a vector quantity because I have associated velocity with it, not speed. So momentum is a vector quantity. It is vector quantity. ठीक है. So momentum is a vector quantity. Great. Okay. So I think I am done with momentum. और आपको ये समझ आया होगा. I hope that. Now फोर्स को हम डिफाइन करेंगे. 4s F equal to ma. सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, we will see it in terms of momentum. Okay. So the rate of change of momentum is my force. See, एक पाथ बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस. पाथ में पॉइंट ए है और पॉइंट बी है एंड देयर इज सम कार चल रही है इस पे. पॉइंट ए पे इसकी वेलोसिटी सपोज इट्स यू, पॉइंट बी पे है इसकी वेलोसिटी वी, और कुछ टाइम लिया गाड़ी ने ए से लेके बी तक जाने में. ठीक है. ए पे इसकी स्पीड है यू मीटर पर सेकंड, बी पे इसकी स्पीड है वी मीटर पर सेकंड. ओके. हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितनी है. सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी है m, सॉरी इसका मास है m. तो फाइनल वेलोसिटी एम वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एम यू हो गया चेंज. हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया. बट इट्स रेट ऑफ चेंज. सो डिवीजन में क्या आएगा, टाइम डिवाइडेड बाई टी. व्हाट इज दिस टी? टी है ए से लेके बी तक. जब इसकी वेलोसिटी यू थी फिर वेलोसिटी वी है, उस में कितना टाइम कंज्यूम हो गया है, दैट्स माई टी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर द अबव फिगर इज कितना है, एम वी माइनस दिस एंड दैट. ग्रेट. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम ऑफ वी माइनस यू बाई टी. बट acceleration is defined as the rate of change of velocity. but या फिर दूसरा, but v is equal to u plus at, first equation of motion. इसको मैं लिख सकता हूँ a is equal to v minus u by t. तो इस a को मैं क्यों नहीं यहाँ पे डिफाइन ये सब्स्टिट्यूट करूँगा. आई कैन देन
rate of change of momentum. What's the rate of change of momentum now? M into A. But what's MA? But F equal to MA. कहाँ से? न्यूटन्स second law of motion. Then rate of change of momentum. This is my rate of change of momentum. T ही लिखेंगे. Then my rate of change of momentum is ma, is f. So my force is change of momentum with time. So मेरी जो फॉर्मूला है मोमेंटम की, it is the rate of change of momentum with time and I have derived it. कुछ नहीं किया मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फिर वो मुझे m इंटू ए के बराबर निकला है. बट माई m इंटू ए इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट्स फोर्स. सो माई फोर्स इज change of momentum with time. So force is rate of change of momentum with, बस रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब रेट है तो टाइम तो आएगा ही ना डिवीजन में. सो फोर्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दिस. सो फॉर एग्जांपल एक पाथ है, दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी. स्फीयर ए के यहाँ पे रेस्ट पे, तो मैंने इस स्फीयर पे फोर्स डाला सम एफ न्यूटन्स. ठीक है, तो स्फीयर ने जब पॉइंट ए को क्रॉस किया उस टाइम इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड. या मैं ऐसे ही वेट, स्फीयर रेस्ट पे है यहाँ पे, और फोर्स एफ मैंने इस पे जब डाला तो ये रेस्ट पे ही स्टार्ट हो गया. तो यहाँ पे जब, तो ए पे कितनी वेलोसिटी है इसकी, इट्स वेलोसिटी एट ए इज 0 बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. और बी पे इसकी वेलोसिटी है सपोज 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड. और मास ऑफ स्फीयर जो है इट्स 2 किलोग्राम्स. ठीक है ना. तो मुझे बताना है कितना फोर्स मैंने इस स्फीयर पे डाला, कितना फोर्स मैंने इस स्फीयर पे डाला, सो दैट कि मैंने इसको रेस्ट से स्टार्ट किया टू पॉइंट बी जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. और टाइम जो लिया इसने फ्रॉम गोइंग ए टू बी इट्स 2 सेकंड्स. 2 सेकंड लगे इसको, इस स्फीयर को ए से बी जाने तक. सो नाउ सी, मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है. आई नो दैट फोर्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम. मेरे पास टी दिया गया है, मुझे डेल पी निकालना है. सो डेल पी चेंज ऑफ मोमेंटम, change of momentum, it's equal to final momentum minus initial momentum. What's my final momentum? M into v, mass into velocity कितनी है b पे 10 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल 2 into velocity कितनी है 0. सो इट्स 20 किलोग्राम
meter per second is the change of momentum of the sphere from A to B. Therefore फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ इस पे, डेल पी और टी। डेल पी कितना है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और कितना टाइम लगा इसको ए से बी जाने तक, 2 सेकंड्स। सो फोर्स इज 10 न्यूटन्स। मैंने इस पे 10 न्यूटन्स फोर्स डाले थे सो दैट कि ये ए से बी तक जाए इन टाइम ऑफ 2 सेकंड्स, और बी पे इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। So this is how you can use the above formula, F equal to del P over T. Are you getting me or not? Great. So we are done with this as well. अच्छा, इम्पल्स कुछ भी नहीं है, आई थिंक शॉर्ट्स में मैंने बताया था। लेट्स टेक दिस इक्वेशन F इक्वल टू डेल पी और डेल टी, ये इक्वेशन लेते हैं। थर्ड, इम्पल्स we know या वी हैव, हमारे पास जो है फोर्स इक्वेशन, इट्स डेल पी और टी। टी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों साइड, सो एफ इंटू टी इक्वल टू डेल पी। ये इसी टर्म, यही जो टर्म है मेरे पास, एफ इंटू टी, इट्स कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। जो मोमेंटम में चेंज है, दैट्स माई इम्पल्स। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? इम्पल्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। इट्स द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इट्स इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। जितना टाइम ज़्यादा उतना इम्पल्स भी ज़्यादा। सी, आपने देखा होगा बॉलर जब बॉल को कैच पकड़ता है तो ये बैट्स, हाँ फील्डर, सॉरी, तो फील्डर अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है आफ्टर ही कॉट द बॉल। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाए, क्योंकि बॉल ज़्यादा टाइम ले बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। उससे क्या होगा, उससे जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है वो कम होगा। किस पे? ऑन द हैंड्स ऑफ द फील्डर। तो इसको दर्द नहीं होगा, ठीक है ना। इट्स ऑल फिजिक्स डियर। सो दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स से भी पहले मैंने किया था, सो आई विल नॉट गो इन डेप्थ टू दिस, बट यस, one thing that I wanna tell you here, इम्पल्स ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास फोर्स है और यहाँ से टाइम एक्सिस है। किसी पॉइंट पे एट सम टाइम t1 इतना फोर्स था, फिर इतना, फिर इतना। तो आपको लाइन ज्वाइन करनी है, तो कितना इम्पल्स हो गया, कितना इम्पल्स है फ्रॉम टाइम t1 टू t2। इट्स नथिंग, यू हैव टू जस्ट ज्वाइन द पॉइंट्स, और जितना एरिया है दैट्स माई इम्पल्स। सो इम्पल्स is given by area under the curve of ft ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ में जो एरिया है दैट इज माय इम्पल्स। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
मोमेंटम कंजर्व रहता है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। देखो, फोर्स जो है इट इज rate of change of momentum with time. Rate of change of momentum, I can write out the above equation as f equal to dp over dt। ठीक है ना, बट p जो है इट्स एम वी। सो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ f इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ एम वी। एम इज कॉन्स्टेंट, सो इट्स डी ओवर डी टी ऑफ वी। मुझे यहाँ जाना ही नहीं है वेट, यहीं तक जाते हैं। सी, अगर मेरा मोमेंटम इफ p equal to mv is constant, then force is zero। कैसे? f equal to d over dt of constant is zero। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। सो force is dp over dt। if my p is constant, then the force on the system on the body is zero। अगर मेरे सिस्टम पे फोर्स जीरो है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मोमेंटम उसका कंजर्व रहता है। दैट इज इफ देयर इज नो फोर्स acting on body, then its momentum remains conserved। अगर मेरे बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एटलीस्ट आपको इतना समझ आया होगा हाउ वी कैन से दिस दैट इफ मोमेंटम remains conserved if there is no force। तो यहाँ से मैंने मैथमेटिक्स इसका पूरा किया है। नाउ सी, कोलिजन प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज माई फर्स्ट स्फीयर, ठीक है ना। दिस इज माई सेकंड स्फीयर, दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज माई सेकंड। 2 1। आफ्टर सम टाइम, हाँ, जो मेरा फर्स्ट स्फीयर है इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो, बट जो मेरा फर्स्ट स्फीयर है इसकी वेलोसिटी है कुछ u, कुछ है इसकी वेलोसिटी। मैस इसका है m2, इसका है m1। आफ्टर सम टाइम कोलिजन हो गया। व्हाट हैपेंड? कोलिजन ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि मेरा सेकंड स्फीयर रेस्ट पे है और ये चढ़ रहा है आगे की तरफ, ये चढ़ रहा है आगे की तरफ। सो ये कोलाइड करेंगे आफ्टर सम टाइम। कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन, सपोज आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी है v। मैस तो मैस ही हो जाएगा, डिफेक्ट नहीं हो जाएगा इसमें। और जो सेकंड स्फीयर है ये अब रेस्ट पे नहीं रहेगा, इसकी भी वेलोसिटी हो जाएगी सपोज v2, देन दिस इज v1। ओके, तो हमें रिलेशंस बताने हैं बिटवीन v एंड m। सो इट्स आफ्टर कोलिजन, इट्स बिफोर कोलिजन।
सी हाउ टू डू दिस। देखो सिस्टम जो है, सिस्टम में क्या क्या है, दो स्फीयर्स। सिस्टम जो है इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम तो मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। Since there is no force external force acting on either of the sphere, so their momentum remains conserved. Okay, now momentum before collision. तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है, इस सिस्टम का मोमेंटम तो कितना है, इसका है एम वी, सॉरी एम यू, और इसका है एम इंटू ज़ीरो, इसका है ज़ीरो। दिस इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सो इट्स m1 u plus m2 0. It is m1 u. m1 u is the momentum before collision. Now momentum after collision देखते हैं। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है, इस सिस्टम का मोमेंटम, इस सिस्टम का मोमेंटम क्या क्या है, m1 v1 इसका है प्लस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, m2 v2 इसका है सेकंड स्फीयर का। सो लेट्स राइट डाउन m1 v1 प्लस m2 v2। ग्रेट। सो इक्वेशन नंबर सेकंड, एज मैंने यहाँ पे लिखा दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट मीन्स सिंस momentum is conserved, that is momentum before collision is equal to momentum after collision। तो let's equate it's m1 u equal to m1 v1 plus m2 v2। तो मुझे m v2 निकालना था सेकंड स्फीयर का। सो v2 इज इक्वल टू m1 into u minus v1 over m2। This is the velocity of the second sphere। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं बट फिलहाल हम जनरल फॉर्मूला निकालने में कामयाब हो गए। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड स्फीयर। आर यू गेटिंग मी और नॉट? गुड। रिकॉइल ऑफ गन जो है दैट्स आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रिकॉइल ऑफ गन आपको पता ही होगा, इफ दिस इज गन
वाओ, दिस इज गन। जब गोली निकलती है इसमें से, ठीक है ना, तो गोली की मोमेंटम प्लस इस गन के रिकॉइल की मोमेंटम इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गन बिफोर वी हैव फायर्ड द बुलेट। तो वो ज़ीरो होता है। देखो पहले गन रेस्ट पे होता है, तो मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज ज़ीरो, बट मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट जो होता है वो होता है मोमेंटम ऑफ दिस बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ द रिकॉइल्ड गन। गन पीछे की तरफ जाता है सो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होती है, गोली आगे की तरफ सो इट्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव। सो इफ यू आर गिवन दोज क्वेश्चंस तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द जो भी दिया गया है दैट यू हैव टू कैलकुलेट, so you can do that. So there are many questions. I think I should. Okay. Oh, okay. Let's do one question on fission. See, आपके पास कोई एटम न्यूक्लियस है, स्फेरिकल ही होता है तो ग्रेट। आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास जो है, न्यूक्लियस का मास जो इट्स 40 यूनिट्स। कितना है ये? 40 यूनिट्स इसका मास है। आफ्टर सम टाइम रेडियो एक्टिविटी हो गई, रेडियो एक्टिविटी होने के बाद दो स्फीयर्स बन गए इसको, या दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सपोज वन पार्ट एंड दिस इज द अनदर पार्ट, ठीक है, दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया ये आपका न्यूक्लियस। ये जो है सपोज इट्स 30 यूनिट्स, M2 और M1। इस पार्ट का जो मास है ओब्वियसली इट्स 10 यूनिट्स, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है इसकी वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इन द ईस्ट डायरेक्शन, सपोज इट्स 5 या 50 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी सेकंड पार्ट की। हाँ, इट्स एट रेस्ट। मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ये रेस्ट पे है, इसका मास है 40 यूनिट्स। रेडियो एक्टिविटी होने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट का मास है 30 यूनिट्स और 50 मीटर पर सेकंड से ही चला निकला, ये ना चला गया टुवर्ड्स द ईस्ट। जो सेकंड पार्ट है मेरा, इसकी वेलोसिटी v है, यही हमें कैलकुलेट करने की किस वेलोसिटी से चला जाएगा और किस डायरेक्शन में चला जाएगा। और उसके मास है 10 यूनिट्स, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी क्योंकि ये जाएगा इस डायरेक्शन में एंड वी विल सी दैट किस में जाएगा मैथमेटिकली। सो एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज कितना है, ये वाला सेक्शन है, मास 40 यूनिट्स इंटू रेस्ट पे है ज़ीरो, सो मोमेंटम इज ज़ीरो बिफोर इम्पैक्ट। नाउ मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट देखते हैं। सो आफ्टर रेडियो एक्टिविटी इसका मोमेंटम जो हो गया फर्स्ट सेक्शन का है m1v प्लस सेकंड सेक्शन का है, सेकंड पार्ट का है m2 इंटू 50। सो ठीक से लिखते हैं, my m1 is 10 units so it's 10v plus my m2 is 30 so it's 30 into 50, so it is 0 0, it's 15, okay, kilogram, oh no, unit meter per second, okay। So let's do it। before है 0, after हमने अभी निकाला it's 10, velocity plus 1500, so it is v is equal,
Here you go with this simple calculation, और -150 मीटर पर सेकंड निकला. दैट मीन्स क्या, सेकंड पार्ट जो है इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, हाउ मच, 1500 मीटर पर सेकंड. And this is the answer. I think this is enough. Thanks.